الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد آج کی تراویح میں 10واں پارہ پورا ہوا اور 11واں پارہ تقریباً ثابت ہوئے، جس کے اندر سورہ انفال اور سورہ توبہ اور سورہ یونس کی چند آیتیں پڑھی گئی۔ سورہ انفال کی آخری آیتوں میں آخری رکوع میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں یعنی مسلمانوں کو ہمت دلائی، اس بات کی ہمت دلائی ہے کہ دشمن کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو مگر تمہیں ثابت قدم رکھنا ہے، اپنے قدم جمائے رکھنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، جان مال کی قربانی دو، تکلیفیں اٹھاؤ، دین کے خاطر مشقت برداشت کرو، تو پھر ہماری مدد نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور یہ وعدہ اللہ جل شانہ نے ہر زمانے میں پورا کیا، خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عہد صحابہ کے وعدے پورے ہوئے اور قیامت تک پورے ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر جمے رہیں اور استقامت کے ساتھ رہیں اور اسی طرح دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کریں۔ دشمن کے مقابلے میں تیر و تلوار اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، جس زمانے کا جو چیلنج ہے اس چیلنج کو پورا کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو مسلمانوں کو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہے، ایجوکیشن کا دور ہے تو مسلمانوں کو ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے، فیلڈ ورک ہے تو مسلمانوں کو اس میں آگے بڑھنا ہے، ٹیکنیکل کورسز ہے تو مسلمانوں کو اس میں آگے بڑھنا ہے، اور ٹاکنگ پاور ہے، رائٹنگ پاور ہے، اسکلس ڈیولپ کرنا ہے۔ جس اعتبار سے جس زمانے میں جو دور چل رہا ہے، دنیا جس طرح بھاگ رہی ہے، مسلمانوں کو 2 قدم اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے رہیں اور صرف نماز اور دعا پہ بھروسہ کر کے بیٹھیں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ حق تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، مگر ہمیں بھی اس مدد کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اس دور میں گھوڑے اور اور جانوروں کا استعمال کیا، خچروں پر سوار ہوئے، دشمنوں کا مقابلہ کیا، حق تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو اب یہ دور بہت بالکل ڈفرینٹ ہے، بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ عقل مندی اور دانش مندی سے کام لیتے ہوئے اپنے اندر پائے جانے والی کمی کو پورا کریں، حق تعالیٰ کی مدد پوری آئے۔ وعدہ قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر تم 10 ہے تو 20 پر بھاری ہے، اگر تم 100 ہے تو 200 پر بھاری ہے، اگر تم 1000 ہے تو 2000 پر بھاری ہے۔ شرط اپنے اندر قابلیت اور اسکلز پیدا کرنا ہے، صرف رونے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگلا جو سورہ ہے سورہ توبہ 10 پارے کے اس میں حق تعالیٰ نے پورا اللہ کے راستے میں یعنی اس کے راستے میں نکلنا، علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے قربانیاں دینا، پورا تقریباً یہ سورہ پورا اسی کے اندر ہے۔ اور اس میں خاص طور پر جنگ تبوک کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ ایسی جنگ ہوئی جنگ تبوک جو اسلام کی آخری جنگ لڑی گئی، اور گرمی کا زمانہ، ہائی ٹیمپریچر کے زمانے میں، اور جبکہ کاروبار کا سیزن ہے، کھجور پکا ہوا ہے مدینے طیبہ میں کھجور پکا ہوا، اتنا پکا ہوا ہے، عالم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کھلا ٹوکرا سر پہ رکھ کر اس باغ کے کنارے سے اس باغ تک پہنچنے سے پہلے اس کا ٹوکرا کھجوروں سے ڈھک جاتا، پکے گر رہے تھے کھجور، بالکل سیزن۔ اور آج بھی کھجور پورے انٹرنیشنل لیول پر مدینہ منورہ کا جو ہے بزنس ہے، آج بھی کوئی نہج ہے، اور اسی نہج میں صحابہ کے زمانے سے آج تک بھی جو کھجور وہاں مدینہ پاک میں ملتا ہے دنیا کی کسی کونے میں نہیں ملتا۔ اس میں جو طاقت ہے، اس میں جو انرجی ہے، اس کے اندر جو انسانوں کے لیے قوت ہے، دنیا کی کسی زمین میں اللہ نے وہ قوت نہیں رکھی۔ تو اس لیے وہی آزمائش آئی تھی اہل صحابہ میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی آزمائش آئی، تو اللہ نے حکم دیا کہ نکلو میرے راستے میں، دشمن کا مقابلہ ہے، جان کی بازی لگانا ہے، ادھر مال کے ڈالے پڑے، بزنس بالکل شباب پر ہے، کھڑا ہوا ہے، اب آزمائش ہے صحابہ کی، اب نکلتے اللہ کے راستے میں، یا مال عزیز ہے، کاروبار عزیز ہے، بیوی بچے پیارے ہیں،
क्या है, निकले अल्लाह के रास्ते में सिवाय दो चार के, अक्सर अल्लाह के रास्ते में निकले, हक ताला सिर्फ आजमाना चाहे, देखना चाहे, निकले बगैर लड़ाई के, अल्लाह ने कामयाबी दी। जब लौट के आए तो सीजन खत्म हो गया। देखो, जंग से वापस आए तो भी पैसा मिला, तो भी उस कदर कामयाबी मिली, वहां भी जो है माल दौलत गनीमत हो गई, अल्लाह ने वो भी अता फरमाया। जब लौट के आए तो मार्केट में पूरा माल खत्म हो गया, कई भी मार्केट पूरी ठप पड़ी हुई है, जिसके पास जितना माल था सब बेच दिए, अब पूरा स्टॉक पूरा जो है रुका हुआ है सहाबा की बाबा। अब मार्केट खत्म हो गई, माल की जरूरत है, लोगों का खाना पीना ही खजूर था। जैसा हमारे पास चावल गेहूँ दाल अनाज सब्जी वगैरह हमारा गुजर बसर रोजाना का जैसा ये है, तो जैसा हम 6 महीने 4 महीने साल का सौदा जो है बाजारों में ला लेते हैं या महीने महीने को ला लेते, तो जैसे चावल नया चावल लोग 6 महीने या 1 साल में ला के रख लेते, दिसंबर के महीने में नया चावल आता है वही ला के रख दो। तो इस तरह जो एक नजरिया बना हुआ है। अब बहुत सारे लोगों का उस जमाने में साल में एक मरतबा खजूर जमा करने का मौका था। अब खजूर मार्केट में नहीं है, किल्लत है, परेशानी है, दूर दूर तक कहीं तसव्वुर नहीं है, अल्लाह के रास्ते में लेके अल्लाह का हुक्म पूरा के उधर माल दौलत के लिए जब लौट कर आए तो इधर खजूर न होने की वजह से रेट डबल टिबल हो गए मार्केट में, स्टॉक मार्केट जो है फुल हाई हो गया। अब कई भी नहीं है सिवाय सहाबा के। अब अंदाजा लगाइए कि लोग बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन इनके सामने हाथ जो है बांध कर खड़े हुए हैं कि आप अपना खजूर से जो है माल निकालो, दरख्तों से माल उतारो, उतार के जो है हमें बेचो, जो मुंह मांगे वो रेट हम दे देंगे। हफ्ताना ने पूरा मंजर खींचा है आज की सूरतों के अंदर। जब आए तो सहाबा खुद कहते हैं कि शायद हम रह के नहीं कमा सकते थे, हफ्ताना ने अपने रास्ते में निकलने की बरकत से सिर्फ हम कदम उठाए इरादा करें उससे डबल ट्रिपल हम बगैर मेहनत में कमा लिए, दोनों हाथों में लड्डू हो गए, अल्लाह के रास्ते में निकल के भी कमाए, वापस आए तो अपने कारोबार से। तो हफ्ताना सिर्फ आजमाना चाहते हैं, पूरा नौकर काम ये है कि अपने इरादे को पुख्ता करें, दीन के किसी भी मामले में हम पीछे न हटे, जिस तरह की भी कुर्बानी जिस दौर में जरूरत है बंदा उसको तैयार करेगा, अल्लाह की मदद में उसका लायक। मैं सिर्फ इशारा किया है उस वाक़े की तरफ, लंबा वाक़या है, पूरे बारे में अल्लाह ने इसको खींचा है पूरे वाक़े को। तो बहरहाल इन्हीं सूरतों के अंदर अल्लाह के निशानों ने एक अहम मसला जो आज का खास मौजू है ज़कात का जिक्र अल्लाह ने किया। ज़कात के सिलसिले में हम ये बात ज़हन में रखें, ज़कात हर उस शख्स के ऊपर फर्ज है जो साहिब निसाब है। निसाब की मिक़दार चांदी से सिल्वर से शुरू होती है, गोल्ड से शुरू नहीं होती, क्योंकि गोल्ड मार्केट अलग है, अपनों अलग रहता है, सिल्वर मार्केट जो है एक ही लेवल पर चलती है। अब सोना एक जमाने में आज से 10 साल पहले 10-12 हज़ार था, इस वक्त 60,000 है, उसकी कोई जो है वो कोई लिमिट नहीं है सोने की। और सोना इंटरनेशनल लेवल पे जब करेंसी डाउन होती है तो उसका रेट अलग हो जाता है, करेंसी अप हो जाती है तो उसका रेट अलग हो जाता है। तो इसलिए सोने को बेस नहीं बनाया ज़कात के फर्ज होने में, सिल्वर यानी चांदी को बुनियाद बनाया गया। अब चांदी 52.5 तोला से लेके 55 तोले के दरमियान जिसके पास है उसकी कीमत इस जमाने के अंदर तकरीबन 40,000 के करीब होती है, 40 से 42,000, 52.5 तोले से 55 तोले के दरमियान। अब इसका खुलासा ये निकला कि जिसके पास चांदी यानी चांदी उसके अंदर जेवर की शक्ल में हो, बिस्किट की शक्ल में हो, कॉइन की शक्ल में हो, या उतना अमाउंट उसके पास हो, या गोल्ड उसके पास हो, या बैंक बैलेंस हो, या इनकम सोर्स जो कमर्शियल है वो उसके पास हो, कोई कर्जा उसके पास नहीं है, किसी को देना उसके ज़िम्मे नहीं है, हर उस शख्स के पास चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जिस किसी के पास भी 40 से 42,000 के दरमियान अमाउंट है, हर चीज़ टेंशन फ्री है और हर एतबार से उस पर कोई कर्जा नहीं है, 1 साल उस पर गुजर गया है, चाहे वो मर्द हो औरत, उस पर ज़कात फर्ज है। ये इसकी बुनियाद है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 40,000 से हम उसका हिसाब करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक पेपर पे आप लिखें चांदी कितनी है,
वो लिखें, सोना लिखें, पैसा लिखें। अगर तीनों को मिलाकर आपका 1 लाख होता है तो उसका 2,500 आप निकालें, ये हिसाब करें। अब जितने लाख आपके बढ़ते जाएंगे बिजनेस के एतबार से, सेविंग के एतबार से, किसी भी एतबार से, आप उन तमाम को जो एक पेपर पे लिखें, इसको इंक्लूड करें और उसका लास्ट में कैलकुलेट करके आप उसका जो है परसेंटेज 2.5 के हिसाब से निकालें। आप सोना चांदी बैंक बैलेंस सब जोड़े तो भी 40,000 से कम हो रहा है और उसका 1 साल नहीं गुजरा तो आपकी ज़कात नहीं। ये हम ध्यान में रखें। और बिजनेस के अंदर भी जो पैसा हम लगा के रखे, बिजनेस में जो रूटीन आइटम है उसके ऊपर ज़कात है, मशीनरीज पर ज़कात नहीं है। मशीनरी भी 5-5 लाख की मशीनरीज होती है, 10-10 लाख की, करोड़ों की मशीनरीज होती है, उस पर ज़कात नहीं है। उस मशीनरी से, उस फैक्ट्री से जो मैन्युफैक्चर आइटम्स है, जो निकलने वाले हैं, प्रोडक्शन है, जो आइटम तैयार होता है, उसका जो रूटीन है, उसका परसेंटेज, उसकी ज़कात निकालें। इसी तरह आपके पास 1 से 10 मकान है, आपने रेंट पे ले रखा है, तो अब जाहिर बात है एक घर इस जमाने में 50 लाख से तो कम नहीं। तो वो घर किसी के 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ के जो मकानात हैं, तो तमाम मकानात पे ज़कात नहीं है। उन मकानात से जो रेंट हासिल होता है उसको आप लेंगे। साल भर में आपको कितना रेंट मिला, मिसाल के तौर पर एक घर से आपको 1 लाख रुपए साल भर में मिले, उस 1 लाख को भी उस लिस्ट के अंदर आप लिखिए। जितना भी आपका इनकम सोर्स है उन तमाम चीज़ों को लिखेंगे। इसी तरह औरतें भी जेवर चाहे इस्तेमाल में हो चाहे इस्तेमाल में न हो, चाहे आप किसी को हाथ बदल दिए हो, गिरवी रखे हो, रहन रखाए हो या बैंक में रखा कर आप लिए हो, कुछ भी करे हो, इस्तेमाल करो न करो, बिस्किट करेंसी किसी भी शक्ल में औरतों के पास भी है, उन औरतों पर भी ज़कात फर्ज है। मर्द अपने कारोबार, अपने बिजनेस की ज़कात निकालेंगे, औरतें अपने जेवरों और अपने बैंक बैलेंस की ज़कात निकालेंगे। दोनों का अलग अलग फर्ज है, दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी। अब इस जमाने में होता क्या, जेवर तो औरत के पास रहता मगर पैसा औरत के पास नहीं रहता, पूरा पैसे का इख्तियार मर्द के पास रहता। तो ऐसी सूरत में हिसाब किताब जो है औरतें तो करें, मर्द भी हिसाब किताब करें। अब चाहे मर्द जो है जितना ज़कात औरत पे फर्ज हो रही है उतना अमाउंट उसको दे दें ताकि वो ज़कात निकाले, क्योंकि दोनों की मिली जुली चीज़ें होती हैं, दोनों का आपस की अंडरस्टैंडिंग की वजह से सारा जो है एक ही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये ना समझे कि भाई औरत को ही अपनी ज़कात निकालना है तो बेचारी क्या करेगी, हर साल एक बाली बेचेगी, कैरट बेचेगी, अंगूठी बेचेगी, तो 2-4 साल में पूरा ज़िम्मा खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचता बेचारी के पास। तो इसलिए मर्द का फर्ज है, मर्द की जिम्मेदारी है कि हर महीना अपनी औरतों को पॉकेट मनी दें ताकि वो अपनी उस पॉकेट मनी के जरिए अमाउंट तय कर लें, आप 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 अपनी अपनी हैसियत से, ताकि औरतें भी आपके बराबर अल्लाह के हुक्म को अपनी खुशी से पूरा कर सकें। ज़कात की अदायगी हो चाहे हज का मामला, हज के मामले में भी औरत को जाना है तो शौहर से भीख मांगना होगा, मैं नहीं चलती हूँ तुम्हारे साथ, पैसे दियो ना। अब वो बेचारी के पास पैसे रहते हैं, अब मर्द जो है उसको दबाता है, तुम्हारे पास हज में पैसे, तुम्हारे पास हज फर्ज नहीं है, ये सब गलत बात है। तो इसलिए आप इतना अमाउंट रखो, अपनी अपनी हैसियत जिसकी जितनी इनकम आमदनी है उसकी एतबार से उनका मालिक बनाओ, ताकि औरतें भी अपनी खुशी से ज़कात की अदायगी हो, सदका खैरात हो, लोगों को देना हो, हज की अदायगी हो, जो भी इस्लामी फरीज़ा है माली और जानी, उसको अपनी तरफ से खुशी से अदा कर सके। बहरहाल और भी इसके अंदर बातें हैं, इंशाअल्लाह हम किसी और मौके पे बताएंगे। सदक़े फ़ितर और जो है फ़िदिया का मामला आइंदा की नशिस्त में आएगा। अल्लाह मुझे और आपको सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह अपने करम से गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। अल्लाह हमारे रोज़े तरावी, सदका खैरात को कबूल फरमा, ज़कात की अदायगी को खुश दिली से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बोझ समझ के ज़कात अदा करने या टैक्स समझ के निकालने से हमारी हिफाजत फरमा। अपने करम से हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।